ઇન્વાઇટ કરી રહ્યો છું. પ્લીઝ વેલકમ none other than જેમણે નેશનલ એવોર્ડ હમણાં જ લીધો છે. પ્લીઝ વેલકમ માનસી પારેખ. વેલકમ મેમ. હેલો, કેમ છો? Hello, કેમ છો? hi. કેમ છો? કેમ છો બધા? પ્લીઝ યસ. હાય. હાય, કેમ છો? હેપી ઉત્તરાયણ બધાને જ. હેપી ઉત્તરાયણ, મકર સંક્રાંતિની શુભકામનાઓ. કેટલી સુંદર પૂછ્યા. તો માનસી મેમ એ સ્ટાર પ્લસ અને ગુજરાતના બ્રિજ, કલ્ચરલ બ્રિજ તરીકે આપણી વચ્ચે છે આજે. એન્ડ વી આર સો મચ હેપી ટુ હેવ યુ. અને આજે સ્ટાર પ્લસ એક અલગ જ વેવ સાથે આવી રહ્યા છે કે પહેલી વાર એવું થઈ રહ્યું છે કે લવ ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે. આ સેલિબ્રેટ થઈ રહ્યો છે, સેલિબ્રેશન ઓફ રોમાન્સ સ્ટાર પ્લસ કરી રહ્યું છે, જેની અંદર આજથી શરૂઆત થઈ રહી છે. અને એમાં પણ અમદાવાદથી 15 જાન્યુઆરીથી લઈને 15 ફેબ્રુઆરી સુધીની આ શરૂઆત કે જેની અંદર આપણી વચ્ચે બીજા બધા એક્ટર્સ તો આવશે જ, પણ આઈ એમ સો મચ હેપી કે મેં સૌથી પહેલાં તમને ઇન્વાઇટ કર્યા કે જેમણે શરૂઆત કરી હતી ફિલ્મ, સિરિયલ્સ ને બધી કેટલી નેશનલ પરફોર્મન્સીસ, અને પછી અત્યારે જે રીતે ગુજરાતીમાં મેમનું યોગદાન છે એ માટે આખું ગુજરાત આજે તમને આભારી છે મેમ. થેન્ક યુ સો મચ. કેમ કે સ્ટાર પ્લસની જે હું જોતો હતો ગુલાલ, હા રાઈટ, અને બધી કેટલી સિરિયલ્સ તમે બ્યુટીફુલી પરફોર્મ કર્યું છે અને લોકોને હજી પણ એ જ ગુલાલ, મને ગુલાલના તમને મળો ને એટલી વખત એના ગ્લિમ્સ આવતા હશે, ઘણા બધાને આવતા હશે કે માનસી મેમને આપણે યાદ કરીએ તો ગુલાલના ગ્લિમ્સ આવે, સુમિત સમાલેકર ને બધા આમ. તો એ બહુ બ્યુટીફુલ છે વાત. અને આજે આપણી વચ્ચે માનસી મેમ છે તો ઉત્તરાયણનો પર્વ છે, દરેક શેડ્સ ઓફ લવ ને આપણે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ. અને એની સાથે સાથે સ્ટાર પ્લસના એક નવા શોની પણ આપણે અનાઉન્સમેન્ટ કરશું. તો પ્લીઝ મેમ, શું કહેવું છે તમારું? પહેલા તો બધાને જ મકર સંક્રાંતિની હાર્દિક શુભકામનાઓ. સોરી, થોડું લેટ થઈ ગયું, અહીંયા ટ્રાફિક ઘણો હતો સર્કલ ઉપર, એટલે આવતા આમ થોડી અટકી ગઈ હતી ગાડી. પણ હું બહુ ખુશ છું, એટલે કેમ કે દર વર્ષે હું અમદાવાદ આવું જ છું સંક્રાંતના દિવસે, કેમ કે અહીંયા પોળમાં પતંગ ચગાવવાની જે મજા છે એ મુંબઈમાં નથી. એટલે એવરી યર હું આવું છું, ને આ વર્ષે હું નહોતી આવવાની કેમ કે કામ હતું મુંબઈમાં. પણ જ્યારે સ્ટાર પ્લસથી કોલ આવ્યો મને કે આવી રીતે લવ ઉત્સવ કરી રહ્યા છે, અને હું એટલી ખુશ થઈ ગઈ કે ડેફિનેટલી લવ ઉત્સવ માટે આ મહિનો કરેક્ટ છે મહિનો. અને આ અમદાવાદની આ પોળ છે આપણા બધાને એકદમ આપણા મનમાં બેસી જાય એવી સુંદર હવેલીમાં આજે આપણે અહીંયા આવી રહ્યા છે. અને સ્ટાર પ્લસ તો મારું ઘર જ છે, કેમ કે લાઈક યુ સેડ, મારી પહેલી સિરિયલ ઇન્ડિયા કોલિંગથી લઈને ગુલાલથી લઈને સુમિત સંભાલેગા, કેટલા સરસ શોઝ સ્ટાર પ્લસ સાથે કર્યા છે મેં. અને અમદાવાદ મારું બીજું ઘર છે, કેમ કે અહીંયા તો આવીને મને આનંદ થાય જ છે. જેટલી પણ ફિલ્મો શૂટ કરી છે છેલ્લા 4-5 વર્ષોથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, અને હવે આપણે અમદાવાદની ઇન્ડસ્ટ્રી એટલી સરસ મોટી થઈ રહી છે અને દેશ પ્રદેશમાં પ્રચલિત થઈ રહી છે, એની વચ્ચે આપણે આ લવ ઉત્સવ આપણે સેલિબ્રેટ કરવાના છે. સો લવ ઉત્સવ ઇઝ અ સેલિબ્રેશન ઓફ લવ બાય સ્ટાર પ્લસ. એક આખા મહિનાનો સેલિબ્રેશન છે આ. અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સેલિબ્રેટ કરવાના છે. ઘણા બધા શોઝ લોન્ચ થવાના છે, ઘણી બધી નવી વાતો કરવાના છે આપણે. અને આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ ટુ બી launching Love Utsav today in Ahmedabad with Star Plus. So yes, it's a great honor for me. બ્યુટીફુલ મેમ. અને પહેલાં તો બહુ જ બધા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે તમારા સપોર્ટના લીધે જે લાલોએ આજે હિસ્ટ્રી કરી છે. એબ્સોલ્યુટલી, લાલો તો આપણે કહેવાય ને કે યસ હિસ્ટોરિકલ ફિલ્મ, દરેક ગુજરાતી માટે ગર્વની વાત થઈ ગઈ છે કે લાલો હવે હિન્દીમાં પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે, અને લાલોએ ઓલમોસ્ટ 120 જેટલો કરોડનો બોક્સ ઓફિસ કરી લીધું, એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય ગુજરાતી ભાષા માટે, ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે, અને ખાલી ગુજરાતી નહીં, રિજનલ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઇન્ડિયન ફિલ્મ્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી બિગ ડીલ. સો યસ, એટલે કેવું કે મેમ કચ્છ એક્સપ્રેસ તો એ આખું વર્લ્ડ વાઇડ પહોંચી ફિલ્મ, અને બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય કે એક નેશનલ એવોર્ડ કે જે આપણે ગુજરાતી, હા એટલે નેશનલ એવોર્ડ્સ તો 3, પણ જે જોઈતો હતો એઝ એન એક્ટર નેશનલ એવોર્ડ આપણા માટે બહુ મોટી વાત છે. અને
એટલે એક્ટર, સિંગર, પ્રોડ્યુસર અને એટલું બધું ટેલેન્ટનો વોલ્કેનો. થેન્ક યુ સો મચ. અચ્છા, આપણી વચ્ચે અનફોર્ચ્યુનેટલી રૂપાલી મેમ હાજર નથી રહી शक्या, પણ એ ઝૂम कॉल थी આપણી વચ્ચે हाजिर રહેશે, जिनको हमने यानी पूरे गुजरात ने और सबसे ज़्यादा पूरी गुजरात की जो माएँ हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उन्होंने सराहा है, जिन्होंने जिया है उनको, जिनको हम अनुपमा के नाम से जानते हैं, रूपाली गांगुली जी, जो सबकी चाहिए थी, सबकी लाडली, जिन्होंने सिखाया कि रिश्तों की अहमियत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खुद का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए. उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो हम देखते हैं कि एक लेडी क्या क्या कर सकती है उनके इमोशंस से. वो जब रोती है तो हमारे घर में हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो भी रोती हैं. ठीक है. और आज पूरे इंडिया में चारों तरफ जिनको बहुत बहुत प्यार मिला है, तो अनुपमा जी यानी कि रूपाली गांगुली जी को हम जूम कॉल पे ज्वाइन करने जा रहे हैं. या तो रूपाली गांगुली जी कनेक्ट हो रहे हैं. शी इज देयर. नो. हेलो मैम, हाउ आर यू? सुन सकते? हाय रूपाली, वी मिस यू. Wasn't well. I was a little under the weather, hence I'm at home today. Oh, Yeah, I'm so sorry I couldn't make it. I wish I'd known you were there. Sending you lots of hugs. lots of hugs to you and your cutie. Chalo, it's a good Star Plus event happening there, and I'm not there. I'm just feeling so left out. So, तो वेलकम मैम. Thank you, thank you. पहले तो पूरे गुजरात की ओर से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, पूरे गुजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत क्योंकि यहाँ की बहुत सारी महिलाएं, उनका दिन खत्म नहीं होता जब तक वो आपको देख ना ले, है ना? और काश ऐसा ही रहे हमेशा. ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट लव्ड जो फेसेस है उनमें से हैं. और हम बहुत खुश हैं आज कि लव उत्सव सेलिब्रेट करने जा रहा है. आज से लॉन्च हो रहा है गुजरात में, है ना? और स्टार प्लस की ओर से अगर आप यहाँ होते तो हम ज्यादा खुश होते, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन तो हैं हमारे साथ. नहीं, आऊंगी, जरूर आऊंगी. बस मुझे कुछ 2-3 दिन का समय दे दीजिए. थोड़ी सी आज ज्यादा गड़बड़ होगी, नहीं तो ऐसा होता भी नहीं है कि मैं तो बुखार में भी शूट कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी ज्यादा गड़बड़ होगी, इसलिए मैं नहीं आ पाई. तो ये वादा रहा, आपने बोला है आऊंगी, तो फिर बिल्कुल. हम इंतजार करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो प्लीज मैम, अभी तो मुझे स्टार प्लस और ये लव उत्सव के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ बातें करनी है. हमारा जो मीडिया भी यहाँ पे कब से वेट कर रहा है, तो प्लीज आप पहले स्टार प्लस और लव उत्सव के लिए कुछ कहें प्लीज. सारे मीडिया वालों को, उपस्थित मीडिया वालों को वहाँ पर मेरा प्रणाम और जय श्री कृष्ण. आज अनुपमा के रूप में नहीं हूँ, लेकिन अनुपमा इज माय अल्टर ईगो. तो आई एम सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू. आई कैन सी मानसी announced for Star Plus. Lots of new content coming up, but also the old content is gearing up for competition. And कमर कस के सभी मेहनत कर रहे हैं. और बिकॉज एक तो अनुपमा और एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिनके 5000 एपिसोड हो चुके हैं. अनुपमा इज 1800 and counting. So it is a competition for all of us to stay relevant today, to bring up topics that connect to the audience, to जो प्यार हमें सभी से मिलता है, सारे ऑडियंस से मिलता है, उसे बरकरार रखने के लिए और मेहनत करते रहें, और जद्दोजहद करें, और अच्छी स्टोरीज लेकर आएं, और आजकल जो चल रहा है उसके पर्टेनिंग टॉपिक्स लेकर आएं. जैसे अभी मैंने कुछ आई थिंक परसों या 2 दिन पहले के एपिसोड में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात उठाई थी. और ऐसी ही चीजें, जैसे चाहे आप वोकल फॉर लोकल हैं
या फिर जो पर्यावरण के बारे में है, या फिर जैसे पितृपक्ष में ही आप क्यों बेजुबानों को खाना खिलाते हैं, आपको पूरे साल खिलाना चाहिए, क्या सिर्फ पितृ एक ही दिन खाना खाते हैं? तो हर रोज किसी बेजुबान को जो खाना नहीं मांग सकता, हम तो खाना खरीद के खा सकते हैं, और भूख जब लगती है तो सबको पता है कि कितना कष्ट होता है, तो किसी बेजुबान को आप खाना खिलाएं। तो ये चीजें जो एक बहुत ही जो सभी बात करना चाहते हैं जिन बारे में, लेकिन कई बार बात हो नहीं पाती, वो सारी चीजें हम अनुपमा के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो चीजें कनेक्ट होती है, बहुत सारी चीजें। खासकर एक सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीज जो है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव डज नॉट मीन बीइंग सेल्फिश, इट मीन्स दैट महिलाएं अपने आप को ना भूजा, परिवार को प्यार करती हैं, बहुत अच्छी बात है। विमेन हैव दिस थिंग अबाउट बीइंग द मोस्ट गिविंग, वी आर गिविंग, राइट? इसलिए हर एक की जरूरतों को, हर एक को अपने आगे रखती हैं, खुद पीछे होकर फैमिली की गाड़ी आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अनुपमा के जरिए एक चीज कहना चाहते हैं हम कि आप खुद से प्यार करना मत भूलिए। आप डू नॉट फॉरगेट सेल्फ लव, डू नॉट फॉरगेट सेल्फ वर्थ। ये जरूरी है कि आप अगर अपनी कदर नहीं करेंगे तो फिर दुनिया क्या ही करेगी। आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया क्या ही देगी। और जैसे अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि कोई आके हमें रेड रोज दे दे, हम किसी को जाके फूल दे दे, हम किसी को आई लव यू कह दें। मैं कहना चाहती हूँ कि हर महिला को, चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 16 साल की हो, चाहे वो 60 साल की क्यों ना हो, चाहे वो 80 साल की क्यों ना हो, आप आईने के सामने जाकर प्लीज 2 मिनट अपने साथ बिताइए और अपने आप से कहिए कि आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी। यू नो, खुद की पीठ को थपथपा के शाबाशी दीजिए, और हो सके तो अपने लिए कुछ गजरे ले लीजिए, अपने लिए कुछ फूल ले लीजिए, अपने आप के साथ वैलेंटाइंस बना के भी देखिए। That is such a correct thing, Rupali, because self love इतनी important चीज है, and as women हम भूल जाते हैं, because women का होता है कि मल्टीटास्किंग करते हैं, तो बाहर का भी देखते हैं, घर का भी देख रहे हैं, या किचन में ये बना कि नहीं, अच्छा ऑफिस में ये हुआ कि नहीं, and as working women हम भी यही फेस करते हैं। So this message is very very true. And I'm so happy that Star Plus through its stories and you through Anupama, आप ये मैसेज कॉन्स्टेंटली लोगों तक पहुंचा रही है। हम औरतें हमेशा ना मानसी गिल्ट महसूस करती रहती हैं, चाहे बच्चों को घर में छोड़ के आई हैं, चाहे माँ बाप से मिलने का टाइम नहीं मिलता, चाहे कुछ और फ्रेंड्स के साथ, हर चीज में गिल्ट रह ही जाता है। हमें गिल्ट लेने की आदत पड़ गई है, या फिर वो हमारी कंडीशनिंग है बचपन से, कि हम गिल्ट लेकर ही बड़ी होती है हर चीज में, कि अरे मैंने ये नहीं किया, हाय उसे बुरा लग गया, हाय उसे बुरा लगा। कभी कभी, मैंने कह दिया हमेशा नहीं, कभी कभी अपने आप के बारे में भी सोच लो। और आई एम नो एडवोकेट फॉर दिस, बट आई हैव लिव्ड विद सो मच गिल्ट, बिकॉज रुद्रांश को जब मैं छोड़ के अनुपमा में गई थी, तब वो 6-6.5 साल का था, एंड अब वो 12 साल का हो गया, मुझसे लंबा हो गया। तो एंड थैंकफुली आई हैव अ स्पाउस हु इज ऑलवेज देयर विद हिम। बट बच्चे बड़े होते हैं, और माओ को ये एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी इस दुनिया में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। तो शायद ये एक सीख हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। 100%। और जब हमें देखते हैं वो काम करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, तो हम सबकॉन्शियसली उसको, उस चीज को अपनी लाइफ में भी लेके आते हैं। When they see the mother working so hard, yes. हाँ, तो आप चाहे कितना भी बोलो बेटा मेहनत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सब गुस्से नहीं होता जब आप देखते हैं कि मम्मी कितना मेहनत करती है, और खासकर आपकी माँ जब मेहनत करती है तो बहुत फर्क पड़ता है। पापा तो होते ही हैं बहुत बड़े इंस्पिरेशन, लेकिन जब माँ मेहनत करती है तो दैट इज वो जो उनकी स्पाउस होगी, उनके लाइफ में जो महिला आएगी, या जो वो खुद भी वो सीखेंगे कि इट इज यू हैव टू रिस्पेक्ट अ वर्किंग वुमन। एंड औरतें भी आज के जमाने में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, पीछे रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो औरतें किसी भी चीज में
मर्दों से कम कम नहीं है। और एक और चीज रूपाली मुझे बोलनी थी कि हम एज विमेन हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कर लेना चाहिए, पर कभी कभी हमको रियलाइज करना चाहिए कि नहीं, वी नीड अ टीम ऑफ पीपल अराउंड अस, और सब एक साथ मिल के हमें सपोर्ट करेंगे तो ही एक पॉसिबल चीज है, बिकॉज True. that is so true that we need a village. Family is very important. And जैसे कि आई थिंक कौन सी फिल्म में था ये मानसी? हाँ, हाँ मतलब हाँ वो ये जवानी है ये दीवानी। जवानी है दीवानी। हाँ, तो वो जब नैना टेल्स बनी हाँ। कि बनी, आप कितनी ही कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही। करेक्ट, तो एब्सोल्युटली, वो जो छूट गया उसका गिल्ट छोड़ो, जो मिला है उसको चेरिश करो और आगे बढ़ो। एब्सोल्युटली, व्हाट अ पॉजिटिव थॉट। उन दोनों को बुला लूं यहाँ पे। Absolutely. तो प्लीज वेलकम। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आशीष राघव, जिन्होंने बहुत अच्छे से थिएटर किया, थिएटर के बाद वेब सीरीज एंड देन बहुत सारे शोज, अपने एक्टिंग के जलवे बिखराए, और अब स्टार प्लस के इस शो में इस प्यारे से शो में आ रहे हैं। तो प्लीज वेलकम आशीष राघव, और उनके साथ जिन्होंने शुरुआत की मॉडलिंग से और अब स्टार प्लस के फेस बनने जा रही हैं, अनुरिमा चक्रवर्ती। प्लीज वेलकम अनुरिमा। राघव, कैन यू प्लीज? थैंक यू रूपाली जी। हेलो अनुरिमा। अभी I met before Okay. at the Star Parivar platform. Yes, we have. तो रूपाली जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. और जाते जाते मैं आपका वादा फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको आना है गुजरात, मैं आऊंगी जरूर, पक्का। गुजरात से मिलने जरूर आऊंगी। हम बहुत साथ सारा आएंगे। प्यार। रूपाली हैं तो ऑफ कोर्स हम बात करते हैं पहले फीलिंग्स की, फर्स्ट लव, एक उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये सारी चीज़ों की बात तो करते हैं। लेकिन स्टार प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो लेके आ रहा है 19 जनवरी शाम को 7 बजे से, जिसका नाम है तोड़कर दिल मेरा। और दिल टूटने की बात जब होती है तब बहुत सारा दुख होता है, घाव होता है, ये सब तो होता है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग टाइटल इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन है शादी के साथ। और शादियाँ तो हम सबको पता ही है कि ईश्वर की देन है, ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी बचता है, ना खाए वो भी बचता है। और लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो इंडिया का बहुत बड़ा टॉपिक है, आजकल के ज़माने के जो यंग कपल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि नहीं, हम प्यार में पड़ेंगे फिर शादी करेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा ये कपल है उनकी अरेंज मैरिज हुई है, और अरेंज मैरिज के बाद क्या क्या होता है इनकी ज़िंदगियों में, कैसे अलग अलग से वेरिएशंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और दो लोग जो एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे अब हर पल एक साथ बिता रहे हैं, एक जीवन साथ बिता रहे हैं, उसमें क्या क्या तकलीफें होती हैं, प्यार होता है, कैसे होता है, शादी के बाद वाले प्यार की बात है तोड़कर दिल मेरा। तो आपका क्या कहना है? डू यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? डू यू वांट टू गो फर्स्ट? So this story is about a guy and a girl. अच्छा, एक ऐसी लड़की की कहानी और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दोनों ही बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और शादी होने के बाद प्यार को डिस्कवर करते हैं एक्चुअली। और ये ऐसा प्यार है कि जो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, मतलब इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से राज रोशनी के जो प्यार दिखाता है वो उसके आसपास ही है। मतलब एक जैसे नॉर्मल लाइफ में मैं बोलूँ कि एक एक्टिवा सबके पास होता है, खाना हर कोई खाता है रात को, ठीक है। तो नॉर्मल ज़िंदगी में क्या हो सकता है कि एक हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया और वो खाना खा के सो गए। लेकिन यहाँ पे प्यार ऐसा है कि राज को पता है कि रोशनी को बिरयानी पसंद है, तो वो उसको एक्टिवा पे बिठाता है और दोनों बाहर जाते हैं और बिरयानी खाते हैं जो दोनों को पसंद है। सबसे पहले तो ये स्टार प्लस का पहला ऐसा सीरियल है जो पूरा आउटडोर लोकेशन पे शूट हुआ, ऑल लाइव लोकेशंस। तो जब भी हम कहाँ शूट हुआ वो भी बता दीजिए। लखनऊ में पूरा का पूरा सीरियल का शो जो है वो लखनऊ में शूट हुआ है। एंड
क्या होता है कि जब आप एक रियल लोकेशन देखते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है किसी भी चीज से। तो अगर हम बिरयानी खाने का हमारा सीन है तो वो हमने बिरयानी के स्टॉल पे किया। सो वी आर एक्चुअली ईटिंग बिरयानी। अगर वो मुझे कोई गिफ्ट दिला रही है तो वो एक शर्ट के स्टोर पे ले जाके दिला रही है, तो वो एक एक्चुअल आपको फीलिंग आएगा कि हाँ जो पीछे खड़े हैं लोग वो एक्चुअली स्टोर में काम करने वाले लोग है ना। तो वो आपको दिखेगा कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। आपको सब कुछ जो लोकेशन है, अगर हम पुलिस स्टेशन का सीन कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, सब कुछ हमने लाइव लोकेशंस पे शूट किया। सो वो जो कनेक्टिविटी आपकी वो बहुत ज्यादा आती है उस चीज से, क्योंकि आपको जो फ्रेम है वो उतना ही रियलिस्टिक दिख रहा है सब। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन बना रहेगा हमारे ऑडियंस से। और साथ साथ हमारे कैरेक्टर्स भी जो है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके पास कोई सुपर पावर है या ये कुछ अलग है, सब ऐसे ही है सर हमारे बीच में से। आपको अपने जैसे भी 10 लोग एब्सोल्युटली। और एक बहुत सुंदर गाना है गुजराती में जो मैंने ही गाया जो इनके लिए करेक्ट है, बिकॉज इनकी जो बात है कि वो अपने ही लाइफ में राजा और रानी है। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस पे मैं एक आंसर इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज रत्ना जी और जावेद जी दोनों के साथ अलग अलग टाइम पे मैं जब थी तब बोल रही थी कि आपके जनरेशन को तो प्यार पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी की याद आई तो आप थोड़ी कोई गाना लिखोगे, आप तो सीधा उनको मैसेज व्हाट्सएप करोगे, इंस्टा पे डीएम करोगे। तो वो जो रोमांस है इस जनरेशन में मिसिंग है, क्योंकि वो जो तड़पना होता है, एक दूसरे की आंखों में देखना होता है, ये सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो गई है। बट इसी की वजह से जेन जी भी ओल्ड स्कूल रोमांस में बहुत विश्वास रख रहा है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डेटिंग ऐप होने के बावजूद भी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। वो बोलते कि नहीं, हम थक गए ये मल्टीपल ऑप्शंस ये प्यार में या ये सिचुएशनशिप्स में और इन सारी चीजों में। हमको वो ओल्ड स्कूल वाला रोमांस जो हमने हमारे माता पिता में देखा है या हमने फिल्मों में जो देखा था, वैसा वाला प्यार हमें भी चाहिए। तो उस जमाने में जेनजी के लिए भी ये शो एकदम रेलेवेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्यार छोटी चीजों में ही होता है। प्यार तब भी होता है जब आप जिससे प्यार करें वो आपके साथ हो, फिर वो अच्छाई हो बुराई हो आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव हो, लेकिन वो एक जो व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हैं वो उन सब में आपके साथ है और वो फीलिंग सबको चाहिए। तो जेनजी भी इस शो से एकदम रिलेट करेगी। प्यार में ईगो तो साइड जितना रहे उतना अच्छा है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए, मैं ये मानता हूँ, बट ईगो को मत आने दीजिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड वॉन्ट टू हैव अ वेरी सिंपल कॉन्वर्जेशन ऑल्सो विथ माई पार्टनर, आई वोंट बी एबल टू हैव दैट इफ आई हैव ईगो विद इन मी। बट सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर कॉम्प्रोमाइज है तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब वो तो अलग ही चीज है। लेकिन ईगो को आप अगर साइड में रख के करें तो काफी कुछ सॉल्व हो सकता है। ईगो नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो प्यार में बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से ईगो तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए प्यार में, रिश्तों में एंड क्योंकि अगर लाइक लड़ाई झगड़ा भी हो रही है रिश्तों में, पति पत्नी के बीच नोक झोंक भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अगर ईगो होता है तो ऑफकोर्स पति पत्नी दोनों सोचेंगे कि लाइक उसे आना चाहिए हमारे पास या फिर मुझे जाना चाहिए। बट अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो किसी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, बट रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए किसी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो when everything is good, when everyone is happy, जो दोनों होते हैं, जब चीजें अच्छी चल रही होती है तो दोनों खुश होते हैं। बट जो आपके हार्ड टाइम्स होते हैं, जो लड़ाई होती है, जो झगड़े होते हैं, उस पॉइंट पे इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर द गुड थिंग्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब नेगेटिव हुई है चीजें, जब लड़ाई हो रही है, तब आप अगर याद रखो, क्योंकि क्या होता है हम भूल जाते हैं लड़ाई में, वो जो आपने ईगो वाली बात की वो आ जाता है एकदम से कि मैंने तो नहीं किया, क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। और वो पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको वो समझना पड़ेगा, तो वो इम्पोर्टेंट। वाह राज, कितने अच्छे थॉट्स हैं तुम्हारे। रोशनी, ये तो मतलब इसके साथ तो झगड़ा हो ही नहीं सकता ना शो में, पता है कि नहीं? वो तो देखेंगे शो में ही।